Hello learners, you all are welcome to secondary level mathematics program. Now we will discuss about one of the very important aspects in mathematics, that is trigonometric ratios. Dear learners, we have already discussed about what are the importance of trigonometrics in the knowledge of the world, or we can say in the field of mathematics. We know that trigonometry helps a lot in the field of mathematics in particularly, or if you see in general, it helps to understand the physics around us, or we can say for the navigation purposes, or we can say for the learning, or we can say to detect air space. The role of importance of trigonometry is very much. And when talking about trigonometrics, in our last class we have discussed about trigonometrics different functions, and also some extent we have discussed about trigonometrics angles, and particularly the right angle triangle part we have already discussed, and now we will be discuss about trigonometric ratios. When talking about ratios means we know that it is divided, means numerator divided by denominator, in the form of numerator by denominator, that it become a ratios. Now, when talking about trigonometric ratios, we know that particularly trigonometric signs, different sign, or we can say different functions based on from the right angle triangles. And now, when talking about trigonometric ratio, first we will be discuss about what are the different ratios that exist in trigonometrics. And the first ratios is the sine. We can say this is called the, we can say sine theta. Suppose this is the sine theta. There we know that there are six different types of we know that 6 different types of trigonometric ratios. One of the thing is sine theta, and when these ratios, first part we will discuss about the reciprocal we can say identity. When talking about reciprocal identity, the first of the identity is sine theta. Sine theta, we know that trigonometric identities basically based from the right angle triangle. Suppose ABC is the right angle triangle and angle B is the 90 degree, and we know that BC is the base, we call is the base, and this is the AB equal to, this is called the perpendicular, and symbolically we write as P, and AC is known as hypotenuse, that is we denoted as H. So, we can say in a right angle triangle, angle B is 90 degree, and angle C, this is the, we can say this angle is theta. Suppose this is theta, and now this is the AB is the perpendicular, BC is the base, and AC is the hypotenuse. Now, we come when talking about sine theta, sine of theta, that means sine of ACB equal to, we can say 1 by cosec theta. This is the, we can say trigonometric, these are the identity. First we are discussing about identities, and basically this identities is known as the reciprocal identity. Reciprocal, we can say this is the reciprocal identity, or is reciprocal identity. That means sine theta equal to 1 by cosec theta, and when talking about the second trigonometric angle equal to cos theta equal to 1 by sec theta, and third angle is, we know that is tan theta equal to 1 by cot theta, and fourth these are the, we know, we can say this is the formula, we can say this is the reciprocal identity, trigonometric identity. Next angle we know that sin, cos, tan. Next the trigonometric identity, we can say trigonometric we can say function is the cot theta equal to 1 by tan theta, and fifth, that is we know that sec theta equal to 1 by cos theta, and sixth angle equal to
this is cosec theta. Cosec theta equal to 1 by sin theta. Dear learners, you see there are 6 different reciprocal identity that exist in the trigonometric. One is sin theta, which is equal to 1 by cosec theta. Reciprocal means we know 1 by something. This is no, that means if you multiply sin theta with cosec theta, you will get 1. That part we have already discussed. That means sin theta multiply with cosec theta, that value equal to 1. Just you see cos theta equal to 1 by sec theta, or we can say cos theta into sec theta equal to 1. Okay. Tan theta equal to 1 by cot theta, or if you multiply tan theta with cot theta, you will get the value equal to 1. Similarly, when talking about cot theta equal to 1 by tan theta, when we multiply cot theta with tan theta, that value will be 1. Okay. And sec theta equal to 1 by cos theta. Similarly, when we multiply sec theta with cosec theta, the value will be 1. And when we multiply cosec theta with sin theta, the value will be also 1. What we observe? What we observe this identity? You just tell me what we observe. You see sin theta equal to 1 by cosec theta equal to 1 by sin theta. So, there is a, we can say, relationship angle between the sin theta with cosec theta. That means this angle with this angle, there is a, we can say, correlationship between the sin theta with cosec theta. That means sin equal to 1 by cosec theta, when cosec ले रहे तो cosec theta equal to 1 by sin theta. So, हम लोग समझने जाएंगे और उसको फॉर्मूला को भी याद रखने भी बहुत आसान हो जाएगा. नेक्स्ट इज कॉस थीटा. व्हेन टॉकिंग अबाउट कॉस थीटा, कॉस के साथ सेक का रिलेशनशिप आप देख सकते हैं. कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा. दैट मीन्स 2 and 5 जो सीरियल नंबर है, ये दोनों भी एक को रिलेशनशिप. एंड सिमिलरली टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा के साथ मैं लूँ टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा. हाउ that you know, that is a very justified, that is very beautiful manner the formula are arranged. These are called the reciprocal identity. The next identity is known as quiescent identity. The second part is we can say this is the reciprocal identity. The second identity is known as the quiescent identity, Q-U-O-T-I-E-N-T, quiescent identity. What are the quiescent identity? अब दोनों का बीच में we can say that is there is a two different formula, tan theta equal to sin theta by cos theta, and second one equal to cot theta equal to just reverse cos theta by sin theta. So, there are the two, we can say for tan theta there is a two different formula. For tan theta in the form of reciprocal identity, tan theta equal to 1 by cot theta, and the same time we can say tan theta equal to sin theta by cos theta. मतलब दोनों फार्मूला सही है. tan थीटा के लिए sin थीटा बाई cos थीटा ये क्यूसेंट फॉर्म का एक फार्मूला है. tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा ये एक वी कैन से द रेसिप्रोकल फॉर्म पे है. cot थीटा का जो 1 बाई tan थीटा रेसिप्रोकल फॉर्म पे, cot थीटा का वैल्यू देखिए आप रिवर्स है, sin थीटा बाई cos थीटा था, यहाँ cos थीटा बाई sin थीटा है. दिस इज नोन एज द क्यूसेंट रेशियो. दैट पार्ट व्हाट वी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सॉल्विंग द डिफरेंट प्रॉब्लम. हम आगे वाले टाइम पे जो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री को लेके प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ये जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हो का क्यूसेंट आइडेंटिटी हो, दैट आर वेरी मच हेल्पफुल टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम that are based on the trigonometric we can say identity. Now, we will be that the another category of identity, this is called as the Pythagorean. This is called the Pythagorean identity. We can say this is the identity also, and the same time we can say also trigonometric formula also. This is the unique, we can say unique formula that are very much helpful to solve any kind of problems, any kind of, I am repeating. So, अगर हम ये फार्मूला को चीज़ को समझ नहीं पा रहे और हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे
तो हम ट्रिग्नोमेट्री को बेस करके कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो कि रेशियो हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका फॉर्मूला को समझना, साथ साथ में उनको यूज करना डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशन पे। That is the very important thing. Now will be the third category, we can say the third category of the identity. This is called the Pythagorean identity. When talking about Pythagorean identity, there are also 3 basic formula, लेकिन तीनों फार्मूला को लेके और 6 फार्मूला क्रिएट हो जाता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। This is called Pythagorean we can say identity. The first one is sin square theta plus cos square theta equal to 1. This is the first formula, we can say Pythagorean identity. The second, लेकिन उनको लेके हम कितने सारे फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं देखेंगे। cos square theta minus sec square theta equal to 1. The third one is cos square theta minus, we can say minus cot square theta. That is the one of the mistake. Cos square theta minus cot square theta equal to 1. Okay. Sec square theta minus tan square theta equal to 1. This is the very important things. There are the basically 3 important formula. आप देख सकते हैं sin square theta plus cos square theta equal to 1. जब ये this is the first, this is the second, this is the third Pythagorean identity. हम लोग उसको लेके एक नंबर आई अगर मैं क्रिएट करूँ sin square theta plus cos square theta equal to 1, same times we can write sin square theta का जो वैल्यू है ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में माइनस हो जाता है। सो वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू सिमिलरली हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये फार्मूला को हमको याद रखना है, उसका बेसिस में 2 फार्मूला क्रिएट हो गया। दैट विल बी नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, बिकॉज एक चीज़ को समझने के बाद ओनली हम साइन चेंज कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली दो नंबर जो फार्मूला है अगर मैं उसका बात करूं cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर मैं बात करूं अभी कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर मैं बात करूं, ओके, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, एंड कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बी नंबर फॉर्मूला पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब एक ही फॉर्मूला से 2 फार्मूला हमारा क्रिएट हो जाता है, जनरेट होता है। सिमिलरली 3 नंबर जो क्वेश्चन था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और मैं लिख सकती हूँ इसको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बी पे अगर मैं लिख सकता हूँ क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 था, माइनस टेन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में प्लस टेन स्क्वायर हो जाता है। दैट इज नॉट ए वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर डूइंग, वी आर जस्ट चेंजिंग द साइन। वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 था, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर था तो राइट हैंड साइड में प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी पे बात करूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है। सो बेसिकली देयर इज द पाइथागोरियन आइडेंटिटी, वी नो दैट देयर आर 9 डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला निकल जाएगा। पहले बेसिक 3 फार्मूला से ईच वन में 2 डिफरेंट फार्मूला, सो विल बी गेट 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला। लेकिन एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, ये फार्मूला को हमको समझना जरूरी है, साथ साथ में कैसे यूटिलिटी करेंगे वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर लर्नर्स, बेसिकली व्हेन टॉकिंग अबाउट
the identity, next part is very important thing is complementary angle. अगर मैं बताऊं जिसको हम बोलते हैं complementary angle. एंड complementary angle का मतलब यही होता है कि अगर मैं बात करूं कि 90 डिग्री को लेके, ओके, अगर साइन के साथ कौन सा एंगल में ऐड करूं जिसका वैल्यू दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फार्मूला, क्योंकि फार्मूला को लेके ही हम प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। जब तक वो फार्मूला हमको पता नहीं चलेगा तो हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं बताया कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का यही मतलब बनता है दो एंगल का समेशन, मतलब एडिशन, वी कैन से दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं द फर्स्ट फार्मूला इज साइन 90 डिग्री, ऑल आर डिग्री फॉर्म बिकॉज ऑल एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, जिसका यूनिटी डिग्री है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू जो वैल्यू होगा दैट विल बी कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली सेकेंड फार्मूला जो है ये होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये का वैल्यू हो जाएगा भी साइन थीटा। ओके, सिमिलरली 3 नंबर फार्मूला है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड फोर्थ फार्मूला होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। कुछ नहीं कर रहे हम, साइन के साथ कॉस रिलेशन है, जस्ट एक रिलेशनशिप को हम ऑब्जर्व करें। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस का साथ 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे ये साइन थीटा हो गया। सो साइन के साथ कॉस जो है ये कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। सिमिलरली टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली फिफ्थ जो है हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा है एंड सिक्स है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा सेक थीटा। दीज आर द 6 वी कैन से 6 complementary angles that exist in the trigonometric. That means basically sin, there are 6 formula, sin 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा हो जाता है एंड cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू sin थीटा हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट तो है और उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सेक का कोसेक के साथ, जैसे सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर मैं बात करूँ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा। टेन कॉट के साथ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होगा। बेसिकली देर आर 6, वी कैन से 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ complementary angles that exist in the trigonometry. Right now, dear learners, basically we have what we have learned. What basically अगर हम एक राइट एंगल ट्रेंगल को लेके हम देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रेंगल पे इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, अनदर एंगल इज थीटा सपोज, एंड बेस क्या है जिसको हम बी से नोमेनक्लेचर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड अनदर इज परपेंडिकुलर, अनदर इज योर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं जैसे बात किए थे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू मैं दोबारा भी लिख देता हूँ क्योंकि ये फार्मूला को लेके हम साइन थीटा का वैल्यू p/h, कॉस थीटा का वैल्यू होगा p/h b/h एंड टेन थीटा का वैल्यू जो होगा p/b। अगर ये तीनों फार्मूला हम याद रख दिए, साइन थीटा इक्वल टू p/h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ओके, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, टेन थीटा इक्वल p/b। सो कॉट थीटा जो है हमको पता है, कॉट थीटा जो आइडेंटिटी हम बात किए थे कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, टेन थीटा का वैल्यू 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू 1/tan थीटा हो जाएगा, b/p हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम है मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। साइन थीटा p/h, अगर मैं कोसेक थीटा लिखूँ, कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा h/p हो जाएगा, और cos थीटा इक्वल टू सपोज b/h, यहाँ पे दैट इम्प्लाइज वी कैन से सेक थीटा इक्वल टू h/b, जस्ट रेसिप्रोकल, वो जिसको हम बोलते हैं उल्टा देंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। दीज आर द बेसिक
वी कैन से रेसिप्रोकल का जो रेशियो है उनका फॉर्मूला है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो डिस्कशन किए जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको पाइथागोरियन आइडेंटिटी बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फार्मूला को लेके छह डिफरेंट फार्मूला हम भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट था क्यूसेंट रेशियो, जिसको टेन एंड कॉट, ये दोनों का टेन एंगल हो कि कॉट एंगल हो, ये दोनों का ही क्यूसेंट रेशियो एग्जिस्ट है। दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्यूसेंट रेशियो जो है बहुत डिफरेंट सिचुएशन पे हम लोग को उनको यूज करते हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, ऑल्सो देयर आर 6 डिफरेंट एंगल्स, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। सेक के साथ आपका रहेगा है कोसेक। जैसे हमें बात करूं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। और टेन कॉट ऑलवेज वो इंटरलिंक बहुत है टेन एंड कॉट के साथ। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। बेसिकली दीज आर द ब्रॉडर वी कैन से आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, क्विशेंट आइडेंटिटी, पाइथागोरियन आइडेंटिटी, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स एंड ऑल्सो जो रेशियो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, उसको लेके और नेक्स्ट 3 एंगल्स पे हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला को लेके हम आगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको बारे में हम चर्चा करेंगे। राइट नाउ विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक, देन आफ्टर विल बी डिस्कस हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला in the different mathematical problems. Hello learners, we are discussing about trigonometric ratio and also we have discussed different formula, particularly the reciprocal identity, quiescent identity, Pythagorean identity and complementary angles. Right now we will be basically not discuss, we have to solve the problem that based on the trigonometric no doubt and how we have to use the different formula what we have learned in the different we can say context different situation. Let us see the first problem. What is talking the first problem in a right angle triangle ABC. That means first we have to draw the right angle triangle ABC and angle B is 90 degree. Very simple. When talking about right angle triangle, you see this is the right angle triangle. This is A, B, C and what is given? Angle B is 90 degree. That means AB is perpendicular to BC. Okay. So, angle B is 90 degree and angle C equal to theta. And what is given? Suppose AC equal to 25 centimeter. That is given. I am not asking. Okay. And AB is given suppose 7 centimeter. It is given. Now, question is what is asking? Find the value of cos theta and sin theta in find the value of cot theta into sin theta. Find the value of cot theta dot sin theta dot cot theta dot sin theta dot sec theta. No, find the value of cot theta and sin theta. Suppose ये दोनों वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है. Dear learners, basically when talking about AC, here AC is nothing but the hypotenuse. That means we can say H equal to 25 centimeter and 7 centimeter क्या है ये perpendicular P and B is not given. Actually B is not given. अगर मुझे B मिल जाएगा, B अगर हम निकाल पा रहे, अगर able to find out the value of a B, देन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला पूछ रहे, फार्मूला रेशियो पूछ रहे, व्हाट एवर मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनका वैल्यू हम निकाल पाएंगे. ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज बेस. व्हेन टॉकिंग अबाउट द बेस, यू नो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम एक है, हम लोग को पता है. इन एन पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Okay, this is the basic formula. When talking about base जरूरी है, base का वैल्यू निकालना जरूरी है. So b square equal to we can say h square minus p square.
ओके अगर मैं b का वैल्यू जरूरी है, हमको ये करना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। ये फॉर्मूला एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ हमको पाइथागोरस थ्योरम कोई नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला जो पता है, वी नो दैट कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, हमको पता है जो टेन थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू नथिंग बट द 1/tan थीटा 1/p/b, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला p/b और कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा b/p। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन बेस हमको पता नहीं है अभी तक, दिस इज द फॉर्मूला। अगर मैं बेस को पता करना है, b इक्वल टू आप देख सकते हैं h इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 25 का स्क्वायर, दैट विल बी 625 माइनस पीक स्क्वायर, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर 49 का होल स्क्वायर। उनको अगर मैं सॉल्व करूं, ये वैल्यू आ जाएगा 576, 625 माइनस 49 576, उनका जो स्क्वायर रूट है 24 आ जाएगा। दैट मीन्स b का जो वैल्यू आ गया हमको 24 मिल गया। सो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, नाउ कॉट थीटा इक्वल टू दैट वैल्यू इक्वल टू b/p, दैट मीन्स 24/7। हमको ये वैल्यू निकाल पाए आसानी से। एक ही चीज़ है, हमको एक ही फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ा, दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, उनका वैल्यू हम जस्ट अप्लाई करके ये टोटल वैल्यू कॉट थीटा का वैल्यू हम निकाल पाए। नेक्स्ट इज आस्किंग द सेकेंड पार्ट इज आस्किंग साइन थीटा। अभी कुछ नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल मिल गया। मिलने के बाद ये भी फॉर्मूला पता होना जरूरी है। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h मतलब 7/h का वैल्यू दिया है 25। नेक्स्ट इज आस्किंग थर्ड में, दैट वैल्यू इज आस्किंग सेक थीटा एंड द टेन थीटा। थर्ड पार्ट इज आस्किंग सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या है, b/h है कॉस का, और कॉस का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स b/h h/b होगा। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा h/b, दैट मीन्स 25/b का वैल्यू 24। एंड लास्ट क्वेश्चन इज आस्किंग वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा बहुत आसान है, जो कॉट थीटा का वैल्यू निकाला दैट इज 24/7 24/7। टेन थीटा जस्ट उल्टा होता है, मतलब उल्टा इन दिस सेंस उनका रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। दैट मीन्स कॉट थीटा अगर 24/7, कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा जस्ट रिवर्स, दैट मीन्स 7/24। ये कुछ प्रॉब्लम 1 वी कैन से द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और कितने आसानी से हम ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। लेट्स कम द another problem that is also based on trigonometric ratio. The second formula is asking if cos theta equal to 7/25, find the value of sin theta and tan theta. The question is, if cos theta equal to 7/25, dear learners, what is given? Cos theta, ये problem 2, we can say cos theta equal to 7/25 and asking the value of tan theta and what is the value of, we can say tan theta and sin theta. ये दोनों का वैल्यू क्या होगा? ओके, cos theta equal to 7/25. So first part is we know that cos theta का फॉर्मूला क्या है? cos theta equal to b/h, that means b/h equal to 7/25. तो ये परपेंडिकुलर p क्या होगा? p का वैल्यू हो जाएगा, आराम से होगा, ये 24 हो जाएगा। ओके, ये जस्ट रिवर्स, ये क्वेश्चन नहीं है, राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड का जो वैल्यू और कुछ है, हम जस्ट अभी चेंज कर दें उनका वैल्यू। आप ये देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो पहले जो वैल्यू दिया था ये समथिंग डिफरेंट, अभी परपेंडिकुलर का वैल्यू 24 आ गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? नाउ फर्स्ट पार्ट इज टेन थीटा एंड साइन थीटा।
लेकिन हम पहले वैल्यू निकालेंगे वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है वी नो दैट p बाई एच। p का वैल्यू मिल गया 24 और h का वैल्यू मिल गया 25। तो cos थीटा का वैल्यू 7/25, साइन थीटा का वैल्यू 24/25। You see, second question is asking what is the value of tan theta? Tan theta का वैल्यू we know that sin theta by cos theta। ये एक रेशियो है जिसका बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं क्यूसेंट रेशियो। tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा का वैल्यू cos थीटा बाई sin थीटा। सो tan थीटा अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा का जो वैल्यू दिया है sin थीटा इज गिवन 24/25 बाय cos थीटा का वैल्यू क्या दिया ऑलरेडी गिवन 7/25। अगर मैं उनको सॉल्व करूं 24/25 मल्टीप्लाई विथ 25/7, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/25 हो जाएगा 24/7। सो 25 कैंसिल हो जाएगा, जो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा 24/7। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। दैट मीन्स cos थीटा का एक वैल्यू दिया था हम sin थीटा एंड tan थीटा, ये दोनों का वैल्यू हम आसानी से उनका वैल्यू हम निकाल पाए बाय यूजिंग द we can say trigonometric identity, particularly the quotient identity. Now will come the second problems, and अगर मेरे साथ है किताब के साथ हमारा 22.14 जो मैं वो एग्जाम्पल पे है, cos थीटा एंड sin थीटा का वैल्यू दिया है। ये एक प्रॉब्लम है और बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है जिसको हम आसानी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। What is given if the value of cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा का वैल्यू दिया 1/2, sin थीटा का वैल्यू √3/2। व्हाट इज गिवन? फर्स्ट पार्ट हमको डिस्कशन करना है व्हाट इज गिवन। द क्वेश्चन इज द cot थीटा इक्वल टू द वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। दैट मीन्स cos theta equal to 1/2 and sin theta equal to √3/2. It is given, okay, and find the value of cosec theta, sec theta and tan theta. Question is asking find the value of cosec theta, next is cosec theta, tan theta and sec theta, okay, cosec theta, sec theta एंड tan थीटा, ये तीनों एंगल का वैल्यू क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट इज गिवन? cos थीटा का वैल्यू इज गिवन 1/2, sin थीटा का वैल्यू √3/2। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cosec थीटा, sec थीटा एंड tan थीटा। डियर लर्नर्स, यू सी, अगर मैं tan थीटा का बात करूं पहले, क्योंकि अगर यस फर्स्ट वी कैन गो द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। cosec थीटा का फॉर्मूला क्या है हम लोग को भी पता है 1/sin थीटा। अगर ये फॉर्मूला पता नहीं कर पा रहे तो ये मुश्किल है उनका वैल्यू निकालना। 1/sin थीटा दैट मीन्स 1/√3/2 जिसका वैल्यू मिलेगा 2/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू होगा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा मतलब 1/1/2 दैट मीन्स 2 एंड सी का वैल्यू होगा दैट इज योर tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? sin थीटा बाई cos थीटा। दो फॉर्मूला होता है tan थीटा का, वन है 1/cot थीटा, सेकेंड है कि sin थीटा बाई cos थीटा। अगर sin थीटा बाई cos थीटा है दैट मीन्स √3/2 डिवाइडेड बाय cos थीटा का वैल्यू क्या निकाला था 1/2। दैट मीन्स √3/2 मल्टीप्लाई विथ 2/1, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा।
टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू होगा √3/1, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ √3। ओके, अगर सेम टाइम यहाँ तो पूछा नहीं cot थीटा का वैल्यू क्या है, अगर मैं बात करूँ, अगर somebody is asking what is the value of cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, cot थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/tan थीटा, एंड tan थीटा का वैल्यू क्या निकाला, ऑलरेडी वी फाइंड √3, सो 1/√3 होगा। दैट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम है दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, कुछ किसी टाइप का प्रॉब्लम है, हम आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे बाय यूजिंग दैट फार्मूला। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन ऐसा भी मज़ेदार प्रॉब्लम है जिसको हम आसानी से भी सॉल्व कर पाएंगे। दैट क्वेश्चन इज आस्किंग इफ द वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1/2, दैट क्वेश्चन इज sin थीटा एंड cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा इंटू sec थीटा। सेम क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं, मतलब इस पर क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है, रेशियो को यूज करके हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेट मूव टू अनदर प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू, प्रूव करना है। अभी कभी कभी जगह के वैल्यू निकाल रहे थे, अभी प्रूव करना है। tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू जो है, tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा डॉट cos थीटा, दैट मीन्स डॉट मतलब मल्टीप्लाई डॉट cos थीटा, ये उनको हम प्रूव करना है। डियर लर्नर्स यू कम, व्हाट इज गिवन, ये प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू आएगा 1/sin थीटा डॉट cos थीटा, sin थीटा मल्टीप्लाई विथ cos थीटा। लेट्स सी, अगर ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, हाउ वी विल सॉल्व, देयर इज द, जहाँ प्रूव कर रहे हैं हमको पता है कैसे प्रूव करने का तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू दिया है, राइट हैंड साइड में एक वैल्यू दिया है। देयर इज ए 2 डिफरेंट वे, हम लेफ्ट से राइट प्रूव कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट प्रूव कर सकते हैं, ये अपना मर्जी है, अपने तरीका से हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि व्हिच इज मोर कन्वीनियंस, जो कन्वीनियंस है वो तरीका हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन दोनों तरीका भी सही है। अगर मैं बात करूँ, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉब्लम, दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज इक्वल सिंबल जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को डिसाइड करता है। अगर मैं LHS लो, LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, ओके, tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, हम लोग को पता है tan थीटा का वैल्यू sin अपॉन cos, अगर मैं इसी ढंग पे लिखूँ sin थीटा बाई cos थीटा, नथिंग इज रॉन्ग। tan थीटा का जो क्यूसेंट वैल्यू है sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, मतलब इसी एंगल से tan थीटा से ये वैल्यू मिला, cot थीटा से ये वैल्यू मिला। नाउ अगर ये वैल्यू है प्लस है, अगर हम cos थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम ले जाएंगे, cos डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos, यहाँ साइन से डिविजिबल हो जाएगा, नेक्स्ट रहेगा cos थीटा मल्टीप्लाई विथ cos थीटा, दैट वैल्यू इज cos स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा बाई साइन थीटा। अगेन वी नो दैट साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसको हम पाइथागोरियन आइडेंटिटी बोल रहे थे, यह आ जाएगा 1/cos थीटा डॉट साइन थीटा, जो RHS को हम मिल गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू किए थे, राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड का वैल्यू हम निकाल पाए। सो वी कैन सेफली कंक्लूड दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा प्लस cos थीटा, आप विद इन ब्रैकेट में प्रूव्ड लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रूव कर दिए उनको, आसानी से हम उनको प्रूव कर दिए। नेक्स्ट एक प्रूफ रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे, ये भी सिमिलर है लेकिन मज़ेदार भी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आइडेंटिटी का फॉर्मूला हमको पता है, कोई भी प्रॉब्लम आसानी से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आस्किंग दैट प्रूव दैट sin A प्लस 1/cos A, दैट क्वेश्चन इज प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट sin A बाई 1 प्लस
cos A प्लस 1 प्लस cos A बाई साइन A, 1 प्लस cos A बाई साइन A, उनका जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू विल बी 2 cosec A, दैट वैल्यू विल बी 2 times of cosec A. Let's come. The question is asking sin A upon 1 by cos A equal to 1 plus cos A by sin A equal to 2 cosec A. This is the question. मतलब उनको प्रूव करना है, एंड प्रूव करने का तरीका मैं वही बात बताऊंगा. हम एक LHS है, एक RHS है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रॉब्लम, राइट हैंड साइड ऑफ द प्रॉब्लम. लेफ्ट हैंड साइड से हम मूव करेंगे और लास्टली हमको ऐसे सिचुएशन, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पहुंच जाएंगे जहाँ RHS आ जाएगा. सो वी कैन प्रूव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मूव किए एंड RHS मिल गया. सो ये प्रूव हो जाता है, प्रॉब्लम का प्रूव हो जाता है. सो अगर मैं बात करूं LHS का, LHS क्या है यहाँ पे, दिस इज द LHS लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज साइन A बाई 1 बाई cos A प्लस 1 प्लस cos A बाई साइन A. अगर मैं उनको LCM ले जाऊँ, LCM मतलब ले जाऊँ 1 प्लस cos A मल्टीप्लाई विथ साइन A, ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर 1 प्लस cos A 1 प्लस cos A के साथ डिवाइड हो गया, सो वैल्यू आएगा साइन A इंटू साइन A, साइन A इंटू साइन A. आप दो बार लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. साइन A का वैल्यू साइन स्क्वायर A हो जाएगा. दैट मीन्स साइन स्क्वायर A प्लस यहाँ पे साइन A था, यहाँ पे साइन A क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. तो 1 प्लस cos A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर. अगर मैं उनको दोबारा सॉल्व करूं, आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर A मल्टीप्लाई टू 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस cos A इंटू साइन A. अगर मैं उनको सॉल्व करूं, ये वैल्यू आ जाएगा साइन स्क्वायर थी A प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर है. ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, क्योंकि हम देखना है कौन सा जगह पे कौन फॉर्मूला यूज करना है और कैसे उनको सॉल्व करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर है, we know that A plus B का होल स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. सो 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर होगा 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस cos A का होल स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर A प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos A बाय ये आ जाएगा 1 प्लस cos A इंटू साइन A, ओके, इंटू साइन A. सो we know that then we move sin square A plus cos square A, that value equal to 1. So 1 plus 1 आ जाएगा 2. We can say 2 plus 2 cos A, जो न्यूमरेटर बन जाएगा, क्योंकि sin square A plus cos square का वैल्यू A ऐड करने के बाद ऑलरेडी वी नो दैट पाइथागोरन आइडेंटिटी में sin square A plus cos square का A का वैल्यू जो है ये 1 आएगा. दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी लर्न. सो वी कैन से साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 cos A, दैट मीन्स 2 प्लस 2 cos A न्यूमरेटर बन गया. और डिनोमिनेटर पे जो था हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos A इंटू साइन A. सो अगर मैं न्यूमरेटर पे आप देख सकते हैं 2 प्लस 2 cos A पे अगर मैं 2 कॉमन ले जाऊँ, ये बन जाएगा 1 प्लस cos A बाय 1 प्लस cos A मल्टीप्लाई विथ साइन A. हम कुछ किए नहीं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर को जस्ट हम थोड़ा सा चेंज किया. दैट मीन्स 2 कॉमन लेने के बाद 2 कॉमन ले लिया, जो वैल्यू आएगा रेस्ट 1 प्लस cos A. नाउ 1 प्लस cos A 1 प्लस cos A ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 2 अपॉन साइन A हो जाएगा. 2 अपॉन साइन A को हम 2 मल्टीप्लाई विथ 1 बाई साइन A लिख सकते हैं. देयर विल बी नो प्रॉब्लम. 2 रखा मल्टीप्लाई विथ 1 बाई साइन A, एंड 1 बाई साइन A का फॉर्मूला क्या है, ऑलरेडी नो 1 अपॉन साइन A का जो वैल्यू आएगा cosec A. सो वी कैन से 2 इंटू cosec A. सो ये जो है आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम शुरू किए थे, एंड राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 2 cosec A राइट हैंड साइड था, और यहाँ हमारा वैल्यू भी 2 इंटू cosec A. हम इजीली सेफली वी कैन राइट प्रूफ,
मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम शुरू किए थे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का बहुत सारे जो फॉर्मूला है, इवनली हम जो स्पेशल प्रोडक्ट का फॉर्मूला दैट इज a+b का होल स्क्वायर, ये वैल्यू भी हम यूज करके ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। डियर लर्नर्स, बेसिकली व्हेन टॉकिंग अबाउट trigonometric ratio, trigonometric identity, complementary angle, these are the formula, nothing but the formula। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट सिचुएशन पे हम लोग को यूज करना है, इसके बारे में हम चर्चा किए। मैं तो बताऊं कि ये सिंपली एक फॉर्मूला को कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व किए, और मैं एडवाइस करूंगा कि हमारा किताब में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम दिया, हमारा एक्सरसाइज में काफ़ी प्रॉब्लम दिया जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसको साथ साथ डिफरेंट रेफरेंस बुक भी सॉल्व कर प्रॉब्लम को लेके आप सॉल्व कर सकते हो। और जितने से जितने हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री को, और इतने हमको सरल बन के हो चलेगा, सिंप्लीफाई हो कि चलेगा, और मुझे एक महसूस होगा कि मैं सारे प्रॉब्लम कर सकता हूँ। तब कर सकता हूँ जब ये सारे का फॉर्मूला को हम आसानी से एक तो अंडरस्टैंडिंग करना है, साथ में याद रखना है, और नेक्स्ट स्टेप है कैसे हम यूटिलिटी करना है। Dear learners, I hope that you have enjoyed learning with me. I hope that in our next class we will be more discussion about different other chapters in mathematics. Thank you.